Hello kids, how are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to start second part of chapter 10. Okay, so in first part we have discussed about the different names of Kabaddi. Okay, and about the one incident we have discussed about the girls were playing the Kabaddi game. Okay, and some of the questions we have also discussed on that day. Okay. So here I am starting this chapter. Everybody open page number 81. Open. Now here you can see a story of three sisters is given here. Okay. So here I am starting and you will repeat after me. Okay. Everybody open page number 81. Do you play Kabaddi? Is there a girls Kabaddi team in your school? Do you think that your grandmother played Kabaddi when they were your age? Ask them. So the question is कि आप कबड्डी खेलते हो और आपके स्कूल में क्या है, कबड्डी की टीम है. ओके. और आपको क्या लगता है कि जब आपकी दादी आपकी एज की रही होंगी तो क्या वो भी कबड्डी खेलती थी? You have to or you should ask to her. आपको उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए. Okay. Now see, you can see that about Kannam Malleshwari, one thing is given here. Who is she? We will read about this. Okay. Have you seen or read about her in the newspaper? क्या आपने कभी कर्णम मल्लेश्वरी को देखा है या उनके बारे में पढ़ा है न्यूज़पेपर में? Kannam Malleshwari is a weightlifter. Who is she? She is a weightlifter. Okay. She lives in Andhra Pradesh. Her father is a police constable. Malleshwari started lifting weights when she was 12 years old. Now, she can lift a weight of 130 kilograms. Karnam has won 29 medals in international events. Her four sisters also practice weight lifting. Okay. So, where she lives? She lives in Andhra Pradesh. Okay. And when she started her career as a weightlifting, उन्होंने किस एज में शुरू किया था? At the age of 12. Okay, when she was 12 years old. Okay, fine. And now she can lift a weight of 130 kilograms. Okay, तो अभी वो कितना वेट एक साथ उठा सकती है? 130 kilograms. Okay, and she has won how many medals? She has won 29 medals in international events. International means जो कहाँ होते हैं? Foreign countries में होते हैं. Okay. Now here you can see on page number 81 a story of three sisters is given here. Okay. So here I am starting. Look at this photograph. Don't they look like simple grandmothers, but they are different. तो आप देख रहे होंगे ये जो थ्री सिस्टर्स हैं, जो तीन आप लेडीज की पिक्चर देख रहे होंगे, ये क्या लग रही हैं? सिंपल. इसे लग रहा है कि ये ग्रैंडमदर्स होंगी. ओके. लेकिन क्या है ये? लेकिन अलग हैं. ओके. द पिक्चर इज ऑफ द थ्री सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा. Okay, what are their names? Their names are Jwala, Leela and Hira. Okay, fine. They live in Mumbai. All three of them played Kabaddi and taught the game to others. तो ये तीनों क्या खेलती थी? ये तीनों कबड्डी गेम खेलती थी और इन्होंने दूसरों को भी ये गेम सिखाया है. ओके. ज्वाला टेल्स, when we were young, girls
were not allowed to play this game. तो ज्वाला क्या बता रही हैं? ज्वाला ये बता रही हैं कि जब वो छोटी थी तो उनकी एज की गर्ल्स को ये गेम खेलना अलाउ नहीं था, उनको ये परमिशन नहीं थी कि वो ये गेम खेल सकें. ओके, पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स nobody would marry them. तो वो क्या बताती हैं? वो ये बताती हैं कि लोगों को ये लगता था कि अगर लड़कियां इस तरह के रफ गेम्स खेलेंगी तो कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा. ओके, सो अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड दैट कबड्डी इज अ रफ गेम. ओके, दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू wear boys clothes to play कबड्डी. तो वो क्या बताती हैं कि गर्ल्स को कबड्डी खेलने के लिए किस तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे, जैसे बॉयज पहनते हैं, जैसे लड़के पहनते हैं. ओके, दैट इज वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग. तो इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए लोगों ने उनको कबड्डी गेम खेलने से रोका. ओके, द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड. तो जब उनके फादर की डेथ हो गई थी तो वो बहुत छोटी थी. ओके, देयर मदर एंड मामास, मामास मीन्स मैटरनल अंकल्स, ब्रॉट देम अप. तो उनको बड़ा किसने किया? उनको बड़ा उनकी मम्मा और उनके मामा मीन्स मैटरनल अंकल्स ने किया. ओके, बोथ अंकल्स यूज्ड टू प्ले कबड्डी एंड खो खो. तो उनके जो दोनों क्या थे? मैटरनल अंकल्स थे, मामा लोग थे. वो क्या करते थे? वो कबड्डी और खो खो दोनों गेम खेलते थे. ओके, दे एनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी. तो उन्हें एनकरेज किसने किया? उनकी हिम्मत किसने बढ़ाई? उनकी हिम्मत उनके मामास मीन्स मैटरनल अंकल्स ने बढ़ाई कि उन्हें भी ये गेम खेलना चाहिए. ओके, ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. ऑलमोस्ट 50 years ago, when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. Okay, so what she is telling? She is telling that almost 50 years ago means 50 साल पहले जब उन्होंने ये गेम खेलना शुरू किया था तो कोई भी गर्ल ये गेम नहीं खेलती थी. ओके, पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम. जो उन गर्ल्स के पेरेंट्स होते थे वो उन्हें ये गेम खेलने नहीं देते थे. ओके, बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस. तो उन्हें हमेशा क्या लगा? उन्हें हमेशा ये लगा कि हमें ये गेम खेलना चाहिए. क्यों खेलना चाहिए? क्योंकि उनकी मदर और उनके मामा उनको हमेशा सपोर्ट करते थे. ओके, वी 3 learned the game and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club which is active even today. So what they are telling? They are telling that कि हम सब ने ये गेम खेलना शुरू किया, हम सब ने ये गेम सीखा और उनको और भी लड़कियों ने क्या किया? ज्वाइन किया. ओके, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक कबड्डी क्लब बनाया जो कबड्डी क्लब आज भी चल रहा है. ओके, नेक्स्ट इज दैट रिमेम्बरिंग दोज डेज. लीला एंड हीरा still get very excited when they talk about their matches. तो लीला और जो हीरा, जो 2 लेडीज हैं, वो अभी भी क्या होती हैं? बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश हो जाती हैं उन दिनों को याद करके. ओके, they tell how they won some matches which they were about to lose. तो वो क्या बता रही हैं? उन्होंने उन मैचों को भी जीता है जिन्हें वो उस टाइम क्या कर रही थी? हार रही थी. और उन्होंने कैसे उन मैचेस को जीता. ओके, दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल.
तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? ये सब उनकी स्ट्रॉन्ग विल मीन्स उनको जीतना ही था, इस वजह से ये पॉसिबल हुआ। ओके, ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड। तो उन मैचेस के दौरान बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई थी। ओके, वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच। तो एक बार उन्हें एक दूसरे टाउन में जाना था, इसलिए बहुत बड़े मैच के लिए। ओके, लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 in the evening। और लीला क्या बता रही है? लीला ये बता रही है कि मैच को शाम को कितने बजे स्टार्ट होना था? 6:30 पे। ओके, वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock। बट उससे पहले हम कहाँ चले गए थे? उससे पहले हम एक मूवी देखने चले गए थे जिसकी टाइमिंग क्या थी? 3 to 6। ओके, वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच। तो उनको क्या लगा था? उनको ये लगा था कि जो हाफ एन आवर बीच में बच रहा है उसमें हम वापस आ जाएंगे और हमें वापस आने का बहुत टाइम मिलेगा। ओके, एज सून एज द मूवी स्टार्टेड वी नोटिस्ड सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई है तो किसी तरह का शोर आ रहा था। ओके, इट वॉज क्रिएटेड बाई अवर मामा। तो उन्होंने क्या देखा कि वो हल्ला कौन कर रहा था? वो हल्ला उनके मामा कर रहे थे। ओके, हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विथ अ टॉर्च। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके मामा उनको टॉर्च लेके उस मूवी हॉल में ढूंढ रहे थे। ओके, when he found us he gave a big scolding right there in the cinema hall। तो जब उन्होंने हमको ढूंढ लिया तो उन्होंने हमको बहुत डांटा। ओके, so the sisters had to face many difficulties because of कबड्डी। ओके, तो उन सिस्टर्स को कबड्डी की वजह से बहुत डिफिकल्टीज, बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ी थी। ओके, बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन। बट कबड्डी ने कभी भी उनके फन में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। ओके, हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकेम अ कबड्डी कोच। तो हीरा जो उनकी क्या थी? छोटी बहन थी, वो क्या बन गई? कबड्डी की कोच बन गई। ओके, शी विशेज दैट चिल्ड्रन लाइक यू should enjoy and play many games, especially कबड्डी। तो वो क्या विश करती हैं? वो क्या चाहती हैं? जो आप सबकी एज के बच्चे हैं वो क्या करें? सारे गेम्स को एंजॉय भी करें और उन्हें खेले भी, बट स्पेशली कौन सा गेम? कबड्डी। ओके, सो 2 questions are given here. You can see, have you learned any game from a coach? Which one? Okay, so it is up to you. Whatever answer you want to write, you can. So you can write, yes, I have learned football or basketball or cricket, anything from a coach. Okay, and second question is that, do you know of anyone who has learned any game from a coach? So what will be the answer? Yes, my elder brother or elder sister learned cricket or badminton or kho-kho game from the coach. Okay, till now it is clear to you everybody? Now here you can see some questions are given there on page number 83. We will discuss it. Okay, so the first question is that, how does a coach teach? How does a coach make a player practice? And how hard do you think the players have to work? So what is the meaning of this question? The meaning of this question is that कि जो कोच होता है वो हमें कोई भी गेम कैसे सिखाता है। ओके, एंड हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस। और जो कोच होते हैं वो प्रैक्टिस करना कैसे सिखाते हैं किसी भी गेम की। ओके, एंड हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क। और आपको
ये कैसे लगता है कि जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें हार्ड वर्क करना चाहिए. ओके, सो द आंसर विल बी द कोच teaches the rules and tricks to play a game, okay, perfectly. Fine. Next thing, then he helps players to improve their performance with a lot of practice and hard work. Okay, so he helps players to improve their performance with lot of practice and hard work. Okay, so the coach teaches us the rules and tricks to play a game perfectly. Okay, तो कोच हमें क्या सिखाता है? कोच हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी गेम को कैसे परफेक्टली खेलना है और उसमें क्या रूल्स और ट्रिक्स को अपनाना है. ओके, नेक्स्ट इज दैट he helps players to improve their performance with lot of practice and hard work. और दैट कोच हमें और क्या सिखाता है? कोच ये सिखाता है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. किस तरह से? विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मीन्स ढेर सारी प्रैक्टिस करके और हार्ड वर्क से. इज इट क्लियर? टिल नाउ इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, now see, next question is there. Have you ever thought of making a club for your favorite game? So answer will be yes or no. If the answer will be yes, so what will be the answer? Yes, I would love to make a club for football. Okay, आपको क्वेश्चन है कि हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम. जो भी आपका फेवरेट गेम है, क्या आपने कभी उस गेम के लिए क्लब बनाने की सोची है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो. कितने बच्चे हैं खो खो खेलने के लिए? 15. ओके, दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स विथ इक्वल नंबर्स 7 ईच. तो उन्हें क्या करना है? उन्हें 2 टीम्स बनानी है जिसमें कितने बच्चे होने चाहिए? 7 एक टीम में और 7 एक टीम में. ओके, देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट. तो अब क्या होगा? अब एक प्लेयर उसमें बच जाएगा. व्हाट विल यू डू इफ दिस हैपेंस? अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे? हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी एक्स्ट्रा पर्सन बने हो? राइट अबाउट दिस. सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी आई विल मेक 2 टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 7 प्लेयर्स ईच एंड विल कीप द रिमेनिंग प्लेयर एज एक्स्ट्रा पर्सन. तो आप क्या करोगे? आप 2 टीम्स बना दोगे. ओके, और सब दोनों टीम्स में कितने होंगे? 7 प्लेयर्स होंगे. Okay, and the question is that have you ever become the extra person in the middle? और कभी ऐसा हुआ है कि आप एक्स्ट्रा पर्सन बने हो? So answer will be yes or no, both can be there, but here I have written yes, once I became the extra player in a cricket team. You can write in cricket team, football, basketball, anything you can write. Okay, next question is that every game has some rules.
द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स। तो हर गेम में क्या होता है, हर गेम में कुछ रूल्स होते हैं और हमें उन रूल्स के अकॉर्डिंग खेलना होता है। ओके, लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ द रूल्स आर चेंज। अगर देखते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अगर रूल्स चेंज हो गए तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट a batsman gets out. If the balls fails off the stumps, imagine if there is a rule that the entire team will be out. If all the 3 stumps fall, would it be fun? अगर ऐसा होता है कि हम सारे गेम्स के रूल खेल छोड़ दें और उनको ना माने तो क्या होगा। सो द आंसर विल बी yes, it will definitely be a fun for players and spectators both. तो क्या होगा, ये दोनों बहुत ही मजे की चीज होगी, प्लेयर्स के लिए भी, स्पेक्टेटर्स मीन्स जो दर्शक हैं या जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए भी। ओके, till now it is clear to everybody. That's all for today. Thank you and have a nice day ahead.